Good day viewers, Firdaus Kamran Toshi is once again with you. میں بشپ جان جوزف آئیڈیالوجیکل موومنٹ کے پلیٹ فارم سے ان کی کچھ اور یادداشتیں لے کر آج آپ کے ساتھ حاضر ہوں. اور جیسے کہ میں نے شروع میں آپ لوگوں کو ان کا انٹروڈکشن دیتے ہوئے بتایا تھا کہ ہی واز اے نیشنل اینڈ انٹرنیشنل ہیرو، اور انہوں نے کرسچن کمیونٹی کے لیے اور پاکستان کے لیے اپنی ساری زندگی بہت ساری خدمات انجام دی، اور ہی کنٹریبیوٹیڈ اے لاٹ ٹورڈ سوسائٹی. آج وہ وقت ہے کہ ہمیں ان کو پے بیک کرنا ہے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مسیحی قوم کے لیے اور پاکستان کے لیے جو کچھ ہم اپنی اپنی جگہ پر رہ کر کر سکتے ہیں ہمیں ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے. تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ شروع کے کچھ ایپیسوڈس میں آپ سے شیئر کر رہی تھی کہ انہوں نے اپنی ابتدائی زندگی خوشپور میں گزاری، ابتدائی تعلیم خوشپور کے سینٹ تھامس ہائی اسکول میں حاصل کی، اور اس کے بعد وہ وہاں سے جب انہوں نے یہ سوچا کہ انہیں اپنی زندگی خدا کو دینی ہے، کس راستے پر چلنا ہے، اپنی ساری زندگی خدا کے لیے وقف کر دینی ہے، تو وہ مائنر سیمنری کوئٹہ چلے گئے، اور کوئٹہ سے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کر کے اس کے بعد وہ میجر سیمنری کراچی چلے گئے، جہاں سے انہوں نے تھیولوجی کی اور فلاسفی کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی. جب وہ میجر سیمنری کراچی سے واپس آئے تو اپنی کانانہ تعلیم مکمل کر چکے تھے، اور اس کے بعد انہیں 18 جنوری 1960 کو کہانت کا سیکرامنٹ فیصل آباد میں ملا. فیصل آباد شہر کو اس زمانے میں لائل پور کہتے تھے. تو 18 جنوری 1960 کو انہیں کہانت کا سیکرامنٹ ملا، اور وہ پہلے پنجابی فادر تھے، جو کہ پنجابی مسیحیوں کے لیے ایک فخر کی بات ہے، ایک اعزاز کی بات ہے. میں کوشش کر رہی ہوں کہ کچھ یادداشتیں ان کی لکھی جائیں تاکہ نسل در نسل ان کو ٹرانسفر کیا جائے، کیونکہ اگر ہم اس کو آگے جنریشن ٹو جنریشن پاس آن نہیں کریں گے تو ہماری نئے آنے والی نسلیں ہمارے کرسچن ہیروز کے متعلق ان کو کوئی اویئرنیس نہیں ہوگی. تو اس لیے میں گاہے بگاہے کچھ نہ کچھ پوائنٹس ان کے بارے میں لکھ کے رکھتی ہوں. تو جب وہ پیرش میں جب وہ فادر بننے کے بعد انہوں نے پیرش میں اپنا بشارتی اور رسالتی کام کچھ عرصہ کے لیے، کچھ سالوں کے لیے شروع کیا، اور وہاں پر وہ لوگوں میں رہ کر خدمت کرتے رہے. تو کیونکہ بشپ جان جوزف ہر ایک سٹیج پر ایک نمایاں مقام پر اس لیے رہے کہ ان کی شخصیت کا ایک یہ پہلو تھا کہ وہ اپنی خدا داد صلاحیتوں کی بنا پر، اپنی انتھک محنت اور لگن اور جوش اور جذبے کی بنا پر وہ معاشرے میں ہمیشہ جہاں بھی رہتے تھے ایک نمایاں مقام حاصل کرتے تھے. تو جب وہ بشپ چالیو نے انہیں روم بھیجا تھیولوجی میں اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے کے لیے، اٹلی روم بھیج دیا. اور مجھے یاد ہے کہ جب وہ پی ایچ ڈی انہوں نے کی اور یہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ آج کے بعد بشپ جان جوزف کو بشپ ڈاکٹر جان جوزف کہہ کر لکھا اور پکارا جائے گا، تو میری دادی جو کہ بشپ جان جوزف کی مدر تھیں، جب انہوں نے یہ سنا تو کہنے لگی کہ میں تے انہوں فادر بنن کلیا سی، اے اتھے جا کے ڈاکٹر بن گئے. اینی ویز جب وہ روم سے اعلیٰ ڈگری حاصل کر کے تھیولوجی میں واپس آئے تو میجر سیمنری کراچی میں، کرائسٹ دی کنگ سیمنری کراچی میں وہ ڈین آف اسٹڈیز کے عہدے پر سرفراز ہوئے. 24 اکتوبر 1980 کو وہ فیصل آباد میں معاون بشپ مقرر ہوئے، اور فائنلی 9 جنوری 1984 کو 9 جنوری 1984 کو وہ فیصل آباد کی بشپ مقرر ہوئے. یہاں پر یہ بتاتی چلوں کہ وہ پہلے پنجابی بشپ بھی تھے. ان کے پاس پہلے پنجابی فادر اور پہلے پنجابی بشپ ہونے کے دونوں اعزازات ان کے پاس تھے، اور
undoubtedly he was the pride of Punjabi Christians. खुशपुर की धरती ने, क्योंकि हमारा ताल्लुक खुशपुर से है, हमारा भाई गांव खुशपुर में है, और खुशपुर की धरती ने बहुत सारे लालो जवाहर उगले हैं. एंड बिशप जॉन जोसेफ बिलाशुबा खुशपुर की धरती का एक चमकता दमकता हुआ चांद था, जो रोज़े अव्वल की तरह आज भी हमारे आसमान पर उसी आबोताब के साथ चमक रहा है. तो बात करेंगे बिशप जॉन जोसेफ की शख्सियत की. तो उन्होंने अपनी एक गैर मामूली शख्सियत की बिना पर होने की बिना पर, सलाहियतें, खुदादाद सलाहियतों के मालिक होने की बिना पर हमेशा माशरे में एक एजाज़ी हैसियत हासिल की, एक नुमाया मुकाम पर रहे. 1984 से लेकर 1998 तक वो लोगों में रहकर पासबान आला की खिदमत सर अंजाम देते रहे. वो रवायतों के पासबान थे, वो एक अच्छे चरवाहे थे, लोगों के लिए एक रहनुमा की हैसियत रखते थे, फ़नून लतीफ़ा के शदाई थे, अदब से उनको खुसूसी तौर पर दिलचस्पी थी, कल्चर और सकाफ़त के दिलदादा थे. और मैंने हमेशा बताया कि उर्दू लिटरेचर से उनको एक खसूसी लगाव था, और अपने इरा के तमाम बड़े बड़े जो राइटर्स और शोरा थे, मैंने पहले भी जिक्र किया, जैसे मुस्तनसर सेंतारर थे, परवीन शाकिर थी, जॉन एरिया थे, अहमद फराज वगैरह थे. इन सब के साथ वो हमेशा इन टच रहे, और गाहे बगाहे वो अदब को फ़रोग देने के लिए, उर्दू लिटरेचर को फ़रोग देने के लिए वो बड़े बड़े लेवल्स पर प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करते रहे. इसके साथ साथ बिशप जॉन जोसेफ की शख्सियत का एक पहलू ये भी था कि वो एक दर्दमंद दिल रखते थे, और ख़ास तौर पर क्रिश्चियन यूथ के लिए उनके दिल में, हमारी जो ऑप्रेस्ड, डिप्रेस्ड और मार्जिनलाइज्ड लोग थे और क्रिश्चियन यूथ थी, उनके लिए उनके दिल में एक ख़ास दर्द था, एक जज्बा था कि किस तरह से क्रिश्चियन कम्युनिटी के इमेज को सोसाइटी में रेज़ अप किया जाए. और इसके लिए उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी एफ़र्ट्स की, सारी ज़िंदगी वो काम करते रहे, और इसके साथ साथ गैर मसावी हकूक़, गैर मसावी कवानीन के ख़िलाफ़ अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक वो जंग लड़ते रहे. तो इन सारी चीज़ों के होने के लिए के साथ साथ उन्होंने मसीही नौजवानों की तालीम पर ख़ुसूसी तवज्जो दी, और उसके लिए बहुत सारी एफ़र्ट्स भी की. पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिशप जॉन जोसेफ की वजह से आला तालीम हासिल कर पाए. वो नौजवानों को उनकी फ़ीस पे करते थे पर्सनली तौर पर, और उनको हर तरह से फैसिलिटेट करते थे, उनके लिए आला तालीम के अरेंजमेंट्स करते थे, और चाहते थे कि माशरे में नौजवान अपना किरदार फ़आल तौर पर अदा कर सकें. और इसीलिए नौजवानों ने बिशप जॉन जोसेफ को अपना रोल मॉडल मान लिया था. बहुत सारे बेवा औरतों का घर बिशप जॉन जोसेफ पर्सनली जाकर देखते थे, और उनका सारा खर्चा उन्होंने उठाया हुआ था. तो ये सब कुछ करते करते फिर वो, मैंने बताया कि ह्यूमन राइट्स और इंटरफेथ के लिए उन्हें इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया गया. 20th सेंचुरी के लास्ट डेकेड में जिन लोगों को इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया गया, उनमें क्यारा लोबिक, उनमें आर्च बिशप ऑस्कर रोमेरियो, उनमें मदर टेरेसा, और नो डाउट बिशप जॉन जोसेफ शामिल हैं, और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है. तो लोगों ने उनको अवामी लीडर और अवामी बिशप का ख़िताब दिया, क्योंकि वो लोगों में रहकर उनका दर्द समझते थे और उसको ख़त्म करने के लिए अपनी जिद्दोजहद करते थे. तो लोगों ने बिशप जॉन जोसेफ को अपना मसीहा, अपना निजात दहिंदा मान लिया था, और उन्होंने अपनी दस्तार, पगड़ी, चादर और दुपट्टा बिशप जॉन जोसेफ की नज़र कर दिया था. हमें चाहिए कि हम भी बिशप जॉन जोसेफ के नक्शे कदम पर चलते हुए अपना अपना रोल सोसाइटी में पॉजिटिवली अदा करें, और उनकी इस रवायत को कायम रखा जाए. मेरे यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद ही यही है कि क्रिश्चियन हीरोज़ की, ख़ासतौर पर बिशप जॉन जोसेफ की तमाम तर काविशें जो ज़िंदगी भर उन्होंने की अपने लोगों के लिए, मसीही कौम के लिए, और पाकिस्तान में मसावी हकूक़ के लिए और बैनुल-मज़हब हम-आहंगी के लिए, उन रवायात को कायम व दायम रखा जाए और इस लेगेसी को लेकर आगे चला जाए.
जब मैं इंटरफ़ेथ की बात करती हूँ, तो बैनुल मज़हब हम आहंगी पर उन्होंने क्रिश्चियन मुस्लिम डायलॉग शुरू किया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैंने आपको बताया कि जैसे फैसलाबाद का एक जिज़ाम घर है, लेप्रेसी हाउस है, उनकी तमाम तर ज़िम्मेदारी उन्होंने अपने ज़िम्मे ले रखी थी, उसकी देख-रेख और उसकी सारी मेंटेनेंस, हर चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करते थे और वहाँ पर एक भी क्रिश्चियन पेशेंट नहीं था। तो बैनुल मज़हब हम आहंगी के पर हमेशा वो ब्रिजिंग करते रहे, अपनी एफ़र्ट्स करते रहे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उनकी एक एनिवर्सरी पर हम एक प्रोग्राम कुछ एनजीओज़ ने एक प्रोग्राम मुनक्कद किया था अलहम्रा में, नो नॉट अलहम्रा, प्रेस क्लब में। और मैं क्योंकि टीवी रेडियो की प्रोफ़ेशनल एंकर हूँ, तो मुझे उस प्रोग्राम के लिए एज़ एन एंकर बुक किया गया था। और जब स्टेज पर हम बैठे थे, प्रोग्राम कर रहे थे, तो मेरे से कोई 3 सीट्स छोड़कर मौलाना ख़बीर आज़ाद बैठे थे। मौलाना ख़बीर आज़ाद कहने लगे कि मैं बिशप जॉन जोसेफ जितनी बड़ी पर्सनैलिटी, उन जैसी कोई भी शख्सियत आने वाले बहुत सारे सालों में पाकिस्तान में नहीं देखता। उनकी लेगेसी को पास ऑन किया जाना चाहिए। और उन्होंने ये बातें करते-करते मेरे साथ एक बहुत खूबसूरत बात शेयर की, कहने लगे कि मौलाना ख़बीर आज़ाद अपने फ़ादर को बिशप जॉन जोसेफ के फ्यूनरल पर व्हील चेयर पर फैसलाबाद लेके गए थे। कहने लगे कि मेरे फ़ादर उन दिनों बहुत बीमार थे और लेकिन वो इतनी ज़िद कर रहे थे कि बिशप जॉन जोसेफ के फ्यूनरल पर मुझे ज़रूर जाना है, तो मैं उनको व्हील चेयर पर लेके गया। इस तरह की बहुत सारी खूबसूरत मिसालें जो हैं अम इंटरफेथ की, वो आने वाले कई प्रोग्रामों में मैं शेयर करूँगी। ना सिर्फ ये, बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जिनका अभी मैंने ज़िक्र किया कि उनका पूरा-पूरा तालीमी खर्चा बिशप जॉन जोसेफ ने उठाया हुआ था। उनको आला तालीम दिलाने के लिए उन्हों हर तरह से उनको फैसिलिटेट किया। तो मैं कोशिश करूँगी कि आने वाले कुछ प्रोग्राम्स के अंदर हम उन नौजवानों के, उन लोगों के जो पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर कहीं भी मौजूद हैं, उनके व्यूज़ बिशप जॉन जोसेफ के बारे में लेकर वो भी टेलीकास्ट किए जा सकें। ताकि बिशप जॉन जोसेफ की इस लेगेसी को, उनकी आइडियोलॉजिकल मूवमेंट को सही रूह के साथ पास ऑन किया जा सके, लेकर चला जा सके। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि मैंने जो कुछ भी सीखा, लिखना या बोलना या पढ़ना, वो लिटरेचर के हवाले से हो या ज़िंदगी के किसी भी एस्पेक्ट के बारे में हो, वो मैंने बिशप जॉन जोसेफ से सीखा। तो आज फिर अपनी एक नज़्म जो मैंने बिशप जॉन जोसेफ के लिए लिखी, वो आपकी नज़र कर रही हूँ। पसंद आए तो कमेंट छोड़कर ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। मैं बिशप जॉन जोसेफ, मैं बिशप जॉन जोसेफ तुम्हारे गम उठाकर जा रहा हूँ, जीना तुम्हें सिखा रहा हूँ। ऐ मेरी कौम के खुददार लोगों, ऐ मेरी कौम के खुददार लोगों, मेरी कुर्बानियाँ भुला न देना। ये वक्त कीमती है, गंवा न देना। मेरे नाम पर तामीर करना तारीख तुम, मेरे नाम पर तामीर करना तारीख तुम, मैं बुनियाद बनने जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। अगर नज़्म पसंद आए और ये एपिसोड पसंद आए तो अपने व्यूज़ छोड़कर लाइक करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। नाउ फिरदौस कामरान तोशी is signing off. I will be with you once again very soon with some new episode. Until then, goodbye. Take care of yourselves. Um, कायम है, पाइंदा है, बिशप जॉन जोसेफ जिंदा है। बिशप जॉन जोसेफ मैं भी हूँ, बिशप जॉन जोसेफ तुम भी हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।